हेलो बच्चों, कैसे हो? आपका स्वागत है त्रिपान स्टडी सेंटर में। आज जो हम करने जा रहे हैं क्लास 10th एनआईएस बोर्ड का जो है सोशल साइंस यानी सामाजिक विज्ञान का चैप्टर नंबर 8 जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है। इंडियन नेशनल मूवमेंट यानी भारत का राष्ट्रीय आंदोलन। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण चैप्टर उन सभी बच्चों के लिए है जो सीबीएसई में पढ़ते हों, चाहे एनआईएस बोर्ड के बच्चे हों, चाहे यूपी बोर्ड के बच्चे हों, चाहे बिहार बोर्ड के बच्चे हों। इवन कि जो बच्चे कंपटीशन की तैयारी करना चाहते हैं या कर रहे हैं उनके लिए इंडियन नेशनल मूवमेंट काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा, क्योंकि इसमें हम हर एक विषय पे प्रकाश डालेंगे और जानने की कोशिश करेंगे हर एक पहलू को जो अब तक आप नहीं जान सके, और वो सारी बातें करेंगे जो आपके जीवन के लिए महत्वपूर्ण रहेगा। लेकिन आपको पता है, चैप्टर स्टार्ट करने से पहले एक बात जो मैं सदैव कहता हूँ, जिसको आपको सोचना भी चाहिए, विचार भी करना चाहिए और इवन अमल भी करना चाहिए, वो ये है कि जब भी वीडियो देखिए पूरा देखिए, क्योंकि अधूरा जानकारी सदैव खतरनाक होता है। साथ में एक इंपॉर्टेंट बात ये भी रहता है, अगर आप पहली बार वीडियो देख रहे हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि दोस्तों लाइक कीजिएगा तो बनाने वाले का मनोबल बढ़ता है, सब्सक्राइब कीजिएगा तो इससे ये होता है कि जब भी मैं कोई वीडियो डालूंगा उसका नोटिफिकेशन आपको समय रहते मिल जाएगा। और देखिए, शेयर का मतलब ये होता है कि आपके थ्रू ना जाने किन बच्चों को हेल्प मिल जाए, ये आप भी नहीं जानोगे, इसलिए जो है आप शेयर जरूर करो, ठीक है। व्हाट्सएप स्टेटस पे भी लगाओ। दोस्तों एनआईएस सेंटर जो है कई मानने में बहुत से बच्चों के लिए हेल्पफुल है, चाहे वो 8th क्लास हो, 9th 10th 11th 12th हो, चाहे वो एनआईएस बोर्ड के बच्चे हों, ठीक है, चाहे बीए एमए के बच्चे हो, सभी क्लासों के लिए कुछ ना कुछ जो है त्रिपान सेंटर में उपलब्ध है। तो इसलिए आपके लिए ज़रूरी है कि आप सब्सक्राइब करके इसको चैनल को जो है सेव कर लो, नहीं तो बाद में अगर रिसर्च करोगे तो शायद आपको ये चैनल प्राप्त ना हो। तो इसलिए सोचना नहीं, विचार नहीं करना है, सब्सक्राइब करके जो है अपने पास सेव करना है। दोस्तों ये तो बात था आपके लिए, लेकिन आप देखते हैं हमारा आज टॉपिक क्या है। The next topic is the most important here, the rises of the radical nationalist. There is the most important, the rises of radical nationalist. The middle policy of the moderate in the Congress, the led to be rise of the passionate and the radical nationalist, and who come to be is called Garam Dal. There is the most important here, the radical nationalist who is come to be called Garam Dal. Thus the first phase of the nationalist is a movement come to an end with the government reaction against the Congress. On one hand is split in the Congress in 1907. On the other hand, that is why the period after 1905 till 1918 can be referred to as the era of passionate is a nationalist or Garam Dal. The era of passionate is a nationalist or Garam Dal. Lala Rajpat Rai and Bal Gangadhar Tilak is a Bipin Chandrapal means Lal Bal Pal. There is the most important here. There are Lal Bal Pals mean Lala Rajpat Rai, Bal Gangadhar Tilak and Bipin Chandrapal. Very important leader of these radical groups here. When the moderates were in the forefront of the action, they had is a maintained a low profit, but now there is a swings into action, and there is enters the market, the beginning of a new trend and a new phase in India as a struggle from freedom. According to them, the moderate has failed to be defined Indian as a political goal and the method adopted by their mid and ineffective basis. There is a moderate demand is confined to be upper landed class and failed to be a enacted to the Marx support as a basis of the negotiation with the British. Three leader on your screen. There is a most important person. There is a Lal, Pal and Bal. Means Lala Rajpat Rai is the first, and the Bal Gangadhar Tilaks and Bipin Chandra Pal. There is the most important leader on this period time here. The Garam Dal realized that the British were out to be exploit Indians and destroy there is the self-sufficiency and drain Indian of its wealth. They felt that the Indians should be now to become a free for foreign rules and the government themselves also. And this group is instead there is a making of petitions of the government and believe in the organizing Marx protest here. And criticizing to the government is the policy and boycotting foreign goods and use of Swadeshi. Swadeshi mean here homemade goods, etc. And they did not believe in the depending on the marches of the British.
but believe that the freedom was their right. Bal Gangadhar Tilak give a slogan, freedom is our birthright and we must have it. There is a most important slogan here. The asking for the UPSC exams also these questions. Bal Gangadhar Tilak give a slogan, freedom in our birthright and we must have it. There is a most important slogan. In 1916, the two groups were again united with the effort of Mr. Annie Besant. And do you remember reading about there is an earlier lesson and she started working for. There is a Home Rules movement in the 1914 and she was convinced that India should be a granted self-government. In 1916, Muslim leagues and Congress also come to an understanding with each other. As a sign to be Lucknow Pact, and later is a Mahatma Gandhi, Jawaharlal Nehru, Subhash Chandra Bose become the eminent figure of their Indian National Congress, who lead to freedom movement of Indian forward. यहाँ पर जो हमारे समक्ष आया है टॉपिक गरम दल का उदय। देखिए गरम दल काफ़ी महत्वपूर्ण था स्वतंत्रता संग्राम में। जब अंग्रेज़ों ने जो है नरम दलों से की बात नहीं बनी तो कहते हैं गरम जोशी के साथ जो है अंग्रेज़ों का सामना करना पड़ा। और इसी गरम जोशी को जो है हम गरम दल के उदय के रूप में देख सकते हैं। देखा जाए तो कांग्रेस में नरमपंथियों का विनम्र नीति ही अतिवाद एवं उग्र सुधार राष्ट्रवाद आंदोलन का प्रथम दौर एक और कांग्रेस के विरुद्ध सरकार की प्रतिक्रियाओं और दूसरे कांग्रेस में 1907 में आए दरार के साथ ही ख़त्म हो गया। क्योंकि गरम दल जो थी अपनी काम करवाने में हमेशा जो है हिंसा का सहारा लेती थी, लेकिन नरम दल जो थी बातों पे ही विश्वास रखता था। लेकिन कई दशक तक जो है नरम दल की कोई भी प्रतिक्रिया जो है अंग्रेज़ों तक कोई असर नहीं किया। तो वो इसलिए कि 1905 से 18 तक की अवधि को जो है अतिवाद उग्र राष्ट्रवाद का या गरम दल का युग भी कहा जा सकता है। यानी देखा जाए तो 1905 से लेकर 1918 यानी जब कांग्रेस की स्थापना हुआ 1885 में, तब से जो है नरम दल का ही वर्चस्व था। लेकिन जब जो है बंगाल का विभाजन किया गया तब 1905 से लेकर 1918 तक जो है अवधि ये काफ़ी महत्वपूर्ण थी और इसमें ही अतिवाद उग्र राष्ट्रवाद का गरम दल का जो है युग हुआ और इसका जो है सूत्रपात हुआ। और इसमें मुख्य तौर पे जो लीडर थे उनको लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और बिपिन चंद्र पाल थे। और इनको साधारण शब्दों में लाल बाल पाल भी कहा जाता है। कई बार क्वेश्चन में आ जाता है कि लाल बाल पाल कौन थे, तो लाला लाजपत राय थे, बाल गंगाधर तिलक थे और बिपिन चंद्र पाल थे। इस गरम उग्रपंथी दल के महत्वपूर्ण नेता थे और इनको इन्हीं नामों से ही जाना जाता है, यानी लाल बाल पाल। जब नरमपंथी इस कार्य में आगे थे तब उन्होंने निम्न रूप से रेखा को बनाए रखा, किंतु अब भी अतिक्रिया और पूरे जोश के साथ हरकतों में आ गए। इसके प्रवेश में एक नई प्रवृत्ति और भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में एक नए चेहरे का जो है चिन्हित किया गया और उनके अनुसार नरमपंथी भारत का राजनीतिक लक्ष्य तय करने में असफल रहे। क्योंकि नरमपंथी बात सच्चाई है कि नरमपंथी जो है भारत की राजनीतिक लक्ष्य तय करने में कभी भी सफलता हासिल नहीं कर सके और उनके द्वारा अपनाया गया तरीका नरम और प्रवाहीन था। इसके अलावा वो उच्च जमींदार वर्ग और सीमित रहे। ब्रिटिश के बातचीत के आधार के रूप में बड़े वर्ग के जो है समर्थन में असफल रहे। तो यहाँ पर नरमपंथी की जब असफलता देखी तो गरम दल जो है अपनी प्रभुता स्थापित करने के अंतर्गत वो आगे आए और इसमें तीन जो है महाभूतियों का नाम महत्वपूर्ण है, लाल बाल पाल। चलिए देखते हैं इनको तस्वीर में कि ये किस प्रकार जो है अपनी स्वतंत्रता संग्राम में जो है गरम जोशी के साथ यानी गरम दल के रूप में जो है भारत पे जो है अंग्रेजों का वर्चस्व खत्म किया। यहाँ पर जो आपके समक्ष तस्वीर दिख रहा है वो है लाल बाल पाल, यानी बहुत ही महत्वपूर्ण जो है लीडर थे जो गरम दल के थे, यानी लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और बिपिन चंद्र पाल, जो कि बहुत महत्वपूर्ण थे। और कहा जाता है स्वतंत्रता संग्राम में इनकी बहुत काफ़ी महत्वपूर्ण स्थान था। इवन कि कहते हैं बहुत महत्वपूर्ण इन्होंने अपना जो है स्थान रखा और भारत को जो आज़ादी में दिलाने में इनकी बहुत ही महत्वपूर्ण हाथ भी था। गरम दल का यह विश्वास था कि अंग्रेज भारत का शोषण करते हैं और ये विचार सही भी था, क्योंकि यहाँ पर अंग्रेज जो है भारतवासियों का शोषण कर रहे थे, उसकी आत्म प्रचुरता को नष्ट कर रहे थे और भारत का जो है धन ले जा रहे थे भारत से।
कहते बहुत कुछ जो है अंग्रेजों ने भारत से लेके चले गए। वो अनुभव करते थे कि अब भारतीयों को खुद सरकार चलानी चाहिए और ये गर्मपंथी गुट सरकार के जो है दस्तखत करने के बदले बड़े पैमाने पर जो है विरोध भी करने के लिए अतुल थे। सरकार की नीतियों का आलोचना करने, विदेशी वस्तु का बहिष्कार करने और स्वदेशी गृह निर्मित वस्तुओं का उपयोग करने आदि में उनका महत्वपूर्ण विश्वास था। और वो स्वतंत्रता के लिए सरकार की दया पर निर्भर नहीं थे कि सरकार हमें दया से जो है कुछ दे देगी। उनका विचार था कि जैसे हो वैसे उनसे हासिल किया जाए और ये विश्वास काफ़ी महत्वपूर्ण था। और इन्होंने एक नारा भी दिया था, बाल गंगाधर तिलक के द्वारा दिया गया नारा बहुत ही प्रसिद्ध और बहुत ही महत्वपूर्ण था और कई बार ये एग्ज़ाम में आ जाता है, चाहे वो यूपीएससी एग्ज़ाम हो, चाहे कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो। आज़ादी मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और हम इसे लेकर रहेंगे। किसने कहा? बाल गंगाधर तिलक द्वारा ये 1916 में दी गई महत्वपूर्ण नारा था। आज़ादी मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और हम इसको लेकर रहेंगे। 1916 में दोनों समूह जो है पुण्य एनी बेसेंट के प्रयास का एक हुए। क्या आपको इसके बारे में याद है? जो आप अपने पहले हमने इस पर डिस्कस किया था, चर्चा किया था एनी बेसेंट के बारे में, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण एक कहते हैं समाज सुधारक थी। उन्होंने 1914 में होम रूल आंदोलन के लिए काम करना शुरू किया और इसके द्वारा बताया गया भारत के स्वशासन दिया जाना चाहिए, यानी स्वशासन देना काफ़ी महत्वपूर्ण था। ये उनकी विचारधारा थी। 1916 में मुस्लिम लीग और कांग्रेस भी वैचारिक तौर पर परंपरा से नज़दीकी आए और लखनऊ एक्ट पर हस्ताक्षर किए गए। बाद में महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रसिद्ध चेहरे हुए जिन्होंने स्वतंत्रता संग्राम को आगे बढ़ाया। यानी देखा जाए तो महात्मा गांधी भी राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने, जवाहरलाल नेहरू भी बने, इवन कि सुभाष चंद्र बोस भी बने। लेकिन महात्मा गांधी से थोड़ा सा जो है मनमुटाव होने के कारण उन्होंने जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को छोड़ दिया। Formation of the Muslim Leagues 1906. This is the most important and next topic over. The formation of Muslim Leagues 1906. As the radical movement grows strong, the British began to look for the ways and means to break the unity among the Indians. They tried to do this thought the partition of Bengal and by the sowing there a seed of colonialism. There is a seed of colonialism among the Indian people. They motivated a Muslim to form a permanent political association of their own. In December 1906, during the Muhammadan Education Conference in the Dhaka, and the Nawab Salim Ullah Khan raised the idea of establish of Center Muhammadan Association to be take care of the Muslim interest. Accordingly, on 3rd December 1906, the All India Muslim League was founded, and another prominent person, Aga Khan, was chosen it is the president. The main object of the leagues was their protect and advance the right of Muslim in India and represent there is a need to their government. By the encouraging their issue of the separate Croat and the government, so there is a seeds of colonialism and is a separatism and among the Indians. The formation of the Muslim League is considered to be the first fruit of the British mass struggle of the David and George. Muhammad Ali Jinnah later is joined to the leagues. There is the most important leagues here. Joined to the Muhammad Ali Jinnah later is here. The important अगला जो हमारा यहाँ टॉपिक आया है मुस्लिम लीग की गठन, जो 1906 ईस्वी में की गई। देखिए, जो अंग्रेज़ों ने बीज जो पार्टीशन की बोई और उसका परिणाम क्या हुआ कि जहाँ कांग्रेस दल थी यानी नेशनल कांग्रेस की स्थापना की गई, वहाँ पर मुसलमानों ने भी बात सोचा कि उनका भी एक लीग होना चाहिए, इसलिए उन्होंने जो है मुस्लिम लीग की गठन कर ली और 1906 में ये गठन की गई, क्योंकि उनको लगा कि शायद उनकी इसी में भलाई है और शायद नेशनल कांग्रेस पार्टी जो है वो हिंदुओं के लिए ही है और मुसलमानों पर से कोई तरह के जोर नहीं दिया जाएगा। तो यहाँ पर मुस्लिम लीग के गठन किया गया और तब जाके अंग्रेज़ों ने ये साबित कर दिया कि आगे जो चल के जो होगा भारत और जो है पाकिस्तान दो भागों में बटेंगे, यानी हिंदू मुस्लिम अलग अलग हो जाएंगे। क्योंकि जब यहीं पे ये बीज बो दी गई
पार्टीशन का जो बीज है 1906 में ही बो दी गई। जब कहते हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस थी, तो उसी के स्थान अब दूसरा पार्टी जो है उनके समक्ष आ गया, वो मुस्लिम लीग की गठन कर होके हो गया। जैसे जैसे उग्र परिवर्तनवादी आंदोलन शक्तिशाली हुए, ब्रिटिश भारतीयों की एकता को तोड़ने का रास्ता तलाशने लग गए, क्योंकि उनके पास भारत की एकता तोड़ने के सिवा दूसरा कोई चारा नहीं था। ऐसा उसने बंगाल के विभाजन द्वारा और भारतीयों के बीच जो है सांप्रदायिकता बीज बोकर जो है उन्होंने कोशिश किया, क्योंकि बंगाल का विभाजन से उन्होंने ये साबित कर दिया कि भारत जो है एक देश नहीं है, यहाँ हिंदू और मुस्लिम दो कास्ट के लोग रहते हैं। इसलिए उनको ये लगा कि अगर इनमें मतभेद पैदा कर दिया जाए तो जर्नल सी बात है, इन पे राज्य करना बहुत आसान हो जाएगा। क्योंकि एक कहावत शायद आपको याद होगा, जब दो बिल्ली आपस में लड़ते हैं तो बंदर जो है फ़ायदा उठा के चला जाता है। तो वही हालत यहाँ पर हुआ। अंग्रेज़ों ने यही बात सोचा और इसी के कारण जो है उसने 1905 इसमें बंगाल का विभाजन कर दिया, और बंगाल के विभाजन से ये जो है मुस्लिम में ये बीज बो दिया कि उनका एक अलग राष्ट्र हो सकता है। अब देखिए, आज आधुनिक युग में आज भी वही बीज बोई जा रही है आम जनमानस में। आज बड़े बड़े नेता लोग जो है हिंदुत्व राष्ट्र की मांग कर रहे हैं, हिंदुत्व राष्ट्र बनाने की कोशिश कर रहे हैं। इवन के बड़े बड़े साधु संत भी ऐसे सोच रहे हैं। तो कहीं वही बीज फिर से तो नहीं बोई जा रही है? अगर ऐसा हुआ तो कहते हैं भारत तो कई टुकड़ों में बंट चुके हैं, कई टुकड़े और भी हो जाएंगे, जो हमारे देश के लिए सही नहीं है। और शायद इस इतिहास से आज के नेताओं को समझने की आवश्यकता है कि हिंदू और मुस्लिम नहीं है, न सिख है, न ईसाई है, सब भारत के नागरिक हैं। और सभी जो है बड़े बड़े नेताओं के जिन क्षेत्र में वो संरक्षित प्रदान करते हैं वो उनके संरक्षण में है। यहाँ पर हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि भारत ही एक ऐसा देश है जहाँ पर विभिन्न प्रकार के धर्म जाति यहाँ पर रहती है। अगर ऐसा हुआ तो हर राज्य जो है अपने अलग राज्य की मांग कर लेगा, अपना अलग नेशन बना लेगा। कहते अगर ऐसा हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई रहा तो हिंदू अपने क्षेत्र मांग लेंगे, मुस्लिम अपने क्षेत्र मांग लेंगे, सिख अपने क्षेत्र मांग लेंगे, इवन कि मराठा अपना क्षेत्र मांग लेगा, गुजराती अपना क्षेत्र मांग लेगा। तो इससे क्या होगा, भारत का जो है खंडित हो जाएगा। जो बाबा भाई पटेल जी ने यहाँ पर करके दिखाया और आज के नेता लोग उनकी पूजा करते हैं, उनके स्टैच्यू बना रहे हैं, लेकिन उनकी नीतियों पर कभी नहीं अनुसरण कर रहे हैं। कहते हैं स्टैच्यू बना के आपने क्या साबित किया, जब आपके पास सोच ही नहीं है कि जो इतने बड़े स्टैच्यू बनाए यूनिटी का, लेकिन यहाँ पर तो यूनिटी आप दिखा ही नहीं रही हो। यहाँ तो भारत को तोड़ने की कोशिश कर रहे हो। हिंदुत्व, मुस्लिमित्व, क्या है ये सिस्टम? ये सही नहीं है। ना ये हिंदुत्व है, ना मुस्लिम राष्ट्र है, ना सिख राष्ट्र है, ये भारत राष्ट्र है। भारत का मतलब है हर एक व्यक्ति रह सकता है जिसका यहाँ पर रहने का प्रावधान है। तो कहते हैं जो बीज बोई गई 1906 में, वही आज 2023 में भी बोई जा रही है, और ये आने वाला समय में और भी घातक सिद्ध हो सकता है। क्योंकि यहाँ पर आप पढ़ने से भी आपको समझ में आ रहा है कि अंग्रेज ने यही नीतियों का अनुसरण किया जो आज के नेता अनुसरण कर रहे हैं। तो जर्नल सी बात है, इसमें मांग उठेगी। और जो है सांप्रदायिक दंगा उस समय हुआ था, क्योंकि उनको पता था सांप्रदायिक दंगा इससे करवाया जा सकता है। और आज देखिए हर क्षेत्र में है सांप्रदायिक दंगा फसाद हो रहा है। तो कहीं वही समय आने का संकेत तो हमें नहीं मिल रहा है। तो ये बहुत ही विडंबनापूर्ण बात है जिसको हमें समझने की आवश्यकता है। दिसंबर 1906 में ढाका में हेमलैंडन्स एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस के दौरान नवाब सलीम उल्लाह खान ने जो है मुस्लिम हितों की देखभाल के लिए सेंट्रल हेडमस एसोसिएशन की स्थापना का विचार किया, और उसी के अनुसार 30 दिसंबर 1906 में ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना हुई। क्योंकि एक व्यक्ति की महत्वाकांक्षा के आड़ में जो है पूरे जनजाति जो है बलि चढ़ जाती है, और वही यहाँ पर भी हुआ। क्योंकि ये सिर्फ नवाब सलीम उल्लाह खां की जो है अपना वर्चस्व था, अपनी सोच थी, विचार था, और इसके कारण पूरे मुस्लिम जातियों पर और हिंदू जातियों पर इसका प्रकोप देखने को मिला। उसी के अनुसार 30 दिसंबर 1906 में ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना हुई, और अन्य प्रसिद्ध व्यक्ति जिसने मुस्लिम लीग का नेतृत्व किया हुआ आगा खान थे जो अध्यक्ष चुने गए। यानी मुस्लिम लीग के पहले अध्यक्ष जो थे कौन थे? आगा खान थे।
हिंदू मुस्लिम लीग के पहला जो सदस्य थे, अध्यक्ष थे, आगा खान थे। और ये जो है स्थापना किसने किया था? नवाब सलीमुल्लाह खान के विचारों के कारण जो है मुस्लिम लीग की स्थापना हुई। तो ये कई बार जो है एमसीक्यू के अंतर्गत यूपीएससी एग्ज़ाम या कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं क्वेश्चन। मुस्लिम लीग का उद्देश्य मुसलमानों के अधिकारों की रक्षा करना एवं उन्हें उन्नत करना था, क्योंकि हर जाति का यही सोच विचार होता है कि अपनी जाति को उन्नत बनाए, और वो किसी दूसरे नेता पे वो नहीं विश्वास जता सकते हैं। उनकी ज़रूरतों को सरकार के सामने रखा था और अलग निर्वाचन क्षेत्र के मुद्दे को बढ़ावा देकर सरकार ने भारत में सांप्रदायिक एवं अलगवाद के बीज बो दिए, क्योंकि ये सांप्रदायिक का विचारधारा थी, क्योंकि अलग होना सांप्रदायिक का विचारधारा थी। और मुस्लिम लीग के गठन के ब्रिटिश मुख्यतः रणनीति बांटो और शासन करने का प्रथम परिणाम के रूप में माना जाता है। और बाद में मोहम्मद अली जिन्ना मुस्लिम लीग के सदस्य बन गए। और आपको पता है कि मोहम्मद अली जिन्ना मुसलमान लीग के सदस्य बने और भारत के 2 भागों में बांट दिया। द नेक्स्ट टॉपिक इज हियर मार्लो मिंटो रिफॉर्मर्स इज 1909. देयर इज अ मोस्ट इम्पोर्टेंट हियर मार्लो मिंटो रिफॉर्म. व्हाट इज हियर मार्लो मिंटो रिफॉर्म? लेट्स कम एंड see here. Do you remember reading about the Indian Counseling Act 1892, which enlarged the legislature? There is a 18 member of the Central Legislative Assembly. The Counseling Act of 1909 was an extension of the 1892 reforms, also known as the Moral Mintos reforms, after the name of then Secretary of the State, means Lord Morless, and then to the Vicarious is a Lord Manto. It increased the member of the Legislative Assembly from the 16 to 60. A few non-elected members were also added in there, and thought that the members of the Legislative Council were increased. They had no real powers. There is a reminds a mainly advisory is the character, and they could not stop any bill from being passed, and nor did they have to any power over to the budget. The British made another calculated move to show there is a seed of coalition in the Indian politics by the reduce their separate electorate of the Muslim, and this meant that from the constituency are dominated by the Muslim, only a Muslim candidate could be elected. Hindu could only vote for the Hindus, and Muslim could only vote for the Muslim. The many leaders protest against their colonial electorate policy of British to divide it and rule. आगे जो हमारे समक्ष आया है माल्टो मिंटो सुधार। माल्टो मिंटो सुधार जो 1909 में एस्टेब्लिश किया गया था। क्या आपको भारत विधान परिषद अधिनियम 1892 याद है, जिसने केंद्रीय विधानसभा में जो सदस्यों की संख्या बढ़ाकर विधायिका का विस्तार किया गया था? और 1909 में परिषद अधिनियम 1992 के सुधार का विस्तार था, जिसे राज्य सचिव लॉर्ड मार्टर एवं वायररायस लॉर्ड मिंटो के नाम पर जो है माल्टो मिंटो सुधार के नाम से जाना जाता है। यानी माल्टो मिंटो सुधार का अर्थ था 2 व्यक्तियों के नाम, जिन्होंने इन सुधारों को जो है अपनी चरम सीमा तक पहुंचाया था। उसने विधानसभा में सदस्य संख्या 16 से बढ़ाकर 18 कर दिया। यानी माल्टो मिंटो सुधार का अर्थ था कि इसमें जो है विधानसभा में सदस्य संख्या 16 से बढ़ाकर 18 कर दिया, इसलिए इन्हीं के नाम से जो है माल्टो मिंटो सुधार के नाम से ये बात जाना जाता है। कुछ अनिर्वाचित सदस्यों को भी शामिल कर लिया गया। यद्यपि विधान परिषद सदस्यों की संख्या बढ़ गई, किंतु उसके पास वास्तव में शक्ति नहीं थी। वह किसी कानून को पारित होने से रोक नहीं सकते थे, न उनके पास बजट पर कोई शक्ति थी। वह मुख्यतः केवल सलाहकार की भूमिका में थे। कहते हैं अंग्रेज द्वारा मुसलमानों को अलग निर्वाचन क्षेत्र देना उनको बांटो और शासन करो की नीति थी, क्योंकि उनका दूसरा प्रयास था कि भारत में वो अपना गढ़ को बना ले, और इसके लिए उन्होंने बांटो और शासन करो की नीति का अनुसरण किया। इसका साफ अर्थ यही निकलता था कि मुस्लिम प्रभाव वाले निर्वाचन क्षेत्र में केवल मुस्लिम प्रत्याशी ही चुने जाएं। अब देखिए, ये बहुत बड़ी विडंबना थी और आज के समय में यही अनुसरण किया जाता है। आपको पता है वोटिंग भी मुस्लिम प्रत्याशी हिंदू प्रत्याशी के अंतर्गत दिए जा रहे हैं। यानी भारत अब जो है बट रही है, क्योंकि उस समय
यही बात उस समय भी हो रही थी कि निर्वाचन क्षेत्र में केवल मुस्लिम प्रत्याशी चुने जाएंगे, हिंदू केवल हिंदू को ही वोट देंगे और मुसलमान केवल मुसलमान को ही। और यह भारतीय राजनीति में सांप्रदायिकता का बीज बोने का जानबूझकर किया गया काम था और बहुत नेताओं ने सांप्रदायिक निर्वाचन क्षेत्र का विरोध भी किया। कहते हैं जो सही नेता थे, जो मानते थे कि सांप्रदायिक जो होगा बहुत बड़ी कड़वी घूंट होगा, वो समझ गए थे। लेकिन कहते हैं आज के लोग नहीं समझ रहे हैं इन बातों को कि ये सबसे कड़वी घूंट है। कहते हैं हम एक राष्ट्र हैं, हमारा एक राष्ट्र है, हम एक राष्ट्र के व्यक्ति हैं, हम सब एक हैं और यही भाईचारा लेके हमें आगे बढ़ना चाहिए। ये नहीं कहना चाहिए कि वो हिंदू के राष्ट्र है, वो मुस्लिम का राष्ट्र है, वो सिख का राष्ट्र है। ऐसे में सिर्फ जो है लोगों में सांप्रदायिकता की भावना की जो है बीज बोई जा रही है। कहते हैं ऐसा नहीं है और बड़े बड़े नेता भी इन बातों को नहीं मानते थे। अब यहाँ पर बात समझिए, मोहम्मद जिन्ना को ये क्यों लगा कि भारत में जो है मुस्लिम सुरक्षित नहीं है, जबकि उस समय सबसे अधिक मुसलमान भारत में रहते थे। तो इसका सिर्फ एक ही कारण था कि जिन्ना सुपरिटेंडेंट बनना चाहते थे, वो चाहते थे कि राजगद्दी पर उनको मिले और इसके लिए महात्मा गांधी से भी बात किया गया, लेकिन महात्मा गांधी ने साफ इनकार कर दिया। और आपको पता है पंडित जवाहरलाल नेहरू तो उनको जो है अध्यक्ष कोई भी पद देने के तैयार ही नहीं थे, क्योंकि उन्होंने सीट भी कम जीती थी। तो उनको जो है शासन करना था, किसी एक कौम पे शासन करना था, किसी एक एरिया में शासन करना था और बंटवारा के सिवाय इससे कोई चारा नहीं था। तो आज के नेता लोग भी यही कर रहे हैं, भारत को बांटने की कोशिश कर रहे हैं और वहाँ पर वो राज करने की कोशिश कर रहे हैं कि उनका राजशाही जो है वो छूटे नहीं। क्योंकि एक बार राजनीति में जो सुख सुविधाएं देख लेते हैं ना, वो दोबारा पीछे मुड़ के नहीं देख सकती, क्योंकि सब कुछ जो है उनको बहुत ही शान शौकत मिल जाती है। और यही बात उस समय में भी थी और वही बात आज भी है। तो ये टॉपिक काफ़ी महत्वपूर्ण था। अगर आपको ये बात समझ में आई तो जितना हो सके लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, जितना हो सके इस वीडियो को दूसरे बच्चे तक पहुँचाने में तिरपान स्टडी सेंटर की सहायता कीजिए, जो भी बच्चे जो इन बातों से का अनुसरण कर सके, समझ सके कि गलत कौन है और गलत और सही कौन है। क्योंकि जब तक आपको सही और गलत में भेद नहीं पता चलेगा तब तक भारत का विकास नहीं हो सकता है। और ये बड़े बड़े लोग नहीं करेंगे, आप बच्चे करोगे, क्योंकि आप ही कल के भविष्य हो। इसलिए जितना हो सके इस वीडियो को शेयर कीजिए और पहली बार वीडियो देख रहे थे चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, तभी जो है यहाँ पर ज्ञान का जो है विस्तृत प्रसार मिलेगा। और आपको पता है कि तिरपान सेंटर पे जो है 8th क्लास से लेके MA तक के बच्चों के लिए बहुत से वीडियो उपलब्ध हैं, जो कि प्लेलिस्ट में आपको बेखूबी मिल जाएगा। वहाँ पर सब सब्जेक्ट के अंतर्गत, टॉपिक के अंतर्गत, क्लास के अंतर्गत सारे वीडियो उपलब्ध हैं। देख सकते हो, सोच सकते हो, ठीक है। इसे सोचना नहीं, विचार नहीं करना है। जल्द से जो है अपने मोबाइल में तिरपान स्टडी सेंटर को चैनल को सेव कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।